Shall we turn our Bibles to Deuteronomy, the 31st chapter? आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 31 अध्याय। Deuteronomy, व्यवस्था विवरण 31st chapter. 31 अध्याय We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। These are the last words of Moses to the priests, the Levites, and to Joshua. ये मूसा के आखिरी दिनों के वचन हैं जो वो लेवियों को और यहोशू को और सभा के लोगों को उद्बोधित कर रहा है And to all Israel. और पूरे इज़राइल के सभा को कह रहा है। And Moses went and spake these words unto all Israel. मूसा ने जाकर ये बातें सब इज़राइलियों को सुनाई। And he said unto them, I am 120 years old this day, and I can no more go out and come in. Also the Lord hath said unto me, Thou shalt not go over this Jordan. और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। The Lord thy God, he will go over before thee. He will destroy these nations from before thee, and thou shalt possess them. And Joshua, he shall go over before thee, as the Lord had said. तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। And the Lord shall do unto them as he did unto Sihon and Og, kings of the Amorites, and unto the land of them whom he destroyed. और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। The Lord shall give them up before your face, that ye may do unto them according to all the commandments which I have commanded you. और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, he it is that doth go before thee. He will not fail thee, nor forsake thee. तू हिया बांध और दृढ़ हो और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। And Moses called unto Joshua and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of good courage, for thou must go over with this people unto the land which the Lord had sworn unto them, their fathers, to give them, and thou shalt cause them to inherit it. तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सन्मुख कहा, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खा कर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। And the Lord, he it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be thou dismayed. और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे।
We all know that Moses was the one who delivered the children of Israel out of Egypt. हम सभी लोग जानते हैं कि मूसा ही वो व्यक्ति था जिसने इस्राएलियों की संतान को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया था। It was God who chose him, God who appointed him, God commissioned him, and he did the job which God wanted him to do. वो परमेश्वर ही था जिसने मूसा को बुलाया, उसने मूसा को ठहराया और नियुक्त किया उस काम को करने के लिए जो काम उसने उससे कहा था। Moses told God that I'm not the one. यद्यपि मूसा ने कहा, हे प्रभु, उस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, I can't even speak. मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ। 40 years of wilderness had taken away all his leadership. 40 साल महल से बाहर जंगल के जीवन ने उसकी तमाम अधिकार और उसके नायकपन को हटा दिया था। He was no more commanding troops, neither was he commanding the people in the palace. और अब वो किसी को हुक्म या आदेश ना राजमहल में दे रहा था, ना वो सेना को देता था। God's school is different. परमेश्वर को का सिखाने वाला स्कूल कोई और ही चीज है। There are no shortcuts in the kingdom of God. परमेश्वर के राज में कोई छोटा जल्दी वाला रास्ता नहीं है। Devil will offer us shortcuts, शैतान हमें प्रस्ताव देगा जल्दी और छोटा रास्ते का, but God doesn't offer us shortcuts. लेकिन परमेश्वर हमें इस जल्द वाले रास्ते की अनुमति नहीं देता। If he is getting ready to use us, यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार यदि कर रहा है, he will take us the hard way. तो वो आपको एक कठिन और मुश्किल भरे मार्ग से गुजारेगा। Devil is always offering shortcuts. शैतान हमेशा ही आसान और जल्द वाला रास्ता आपको बताएगा। He told Jesus, if you bow down, worship me, I give you the kingdoms of the world. शैतान ने यीशु मसीह से प्रस्ताव रखा, यदि तू मेरे सामने झुककर दंडवत करे, ये पूरा दुनिया और उसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा। Because it is given to me. क्योंकि ये सब मुझे सौंपा गया है, उसने कहा। It is handed over by Adam. आदम ने सारी वैभव और दुनिया शैतान के हाथ में सौंप दी थी। Jesus refused the shortcut. लेकिन यीशु मसीह ने उस जल्दी से पाने वाले रास्ते को इनकार कर दिया। Another time, एक और समय when he was on the cross of Calvary, जब वो कलवरी के क्रूस पर था, and the priest would stand and mock him and say, और वहां नीचे खड़े याजक और शास्त्री ठट्ठा उड़ा कर बोलते थे, if you be the son of God, यदि तू सचमुच परमेश्वर का बेटा है, come down from the cross. तो क्रूस से तू नीचे उतर आ। There was another shortcut. ये एक और आसान रास्ते का प्रस्ताव आया था। Show yourself अपने आप को चमत्कार दिखा दे, and let the people know who you are. लोग जान जाएंगे कि तू कौन है। Jesus refused that shortcut also. यीशु मसीह ने उस रास्ते को भी इनकार किया। He endured the suffering of the cross. उसने क्रूस की उस सारे दर्द और पीड़ा को सह लिया, For the joy that was set before him. उस आनंद को पाने के लिए जो उसने हमारे लिए आगे रखा था। Amen. आमेन। The joy was you and me saved by his blood. उसका आनंद आप हैं और मैं हूं जो उसके सामने हम रखे थे। Amen. Come down from the cross. लेकिन लोग कह रहे थे कि तू क्रूस से नीचे उतरा। Jesus had told his disciples, यीशु ने अपने चेलों को पहले ही कह दिया the था, Son of Man must suffer, मनुष्य के पुत्र को दुख उठाना जरूरी है, must be rejected, उसे तिरस्कृत होना जरूरी है, must die. उसे मरना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। God will take us away परमेश्वर हमें उस रास्ते से ले जाएगा till this flesh will give up जब तक वो शरीर से हम भरोसा छोड़ दें and the spirit becomes victorious. और आत्मा अंदर से जयवंत हो जाए। Amen. आमेन। So he will take us through fire, परमेश्वर हमें आग से गुजारेगा, through the waters, पानी के पीड़ा से, through trials, परीक्षाओं के पीड़ा से through rejection. और तिरस्कार के पीड़ा से। His school is different to our school. परमेश्वर का स्कूल हमारे स्कूल से बहुत अलग है। And when Moses thought everything is over, तो भी मूसा को लगा जब कि सब कुछ अब हो चुका and है, God said to him, तब परमेश्वर ने उससे कहा, Moses, go, मूसा इस जंगल से उठ और जा, deliver my people Israel.
जा मिस्र देश और वहां से मेरे लोगों को छुड़ा कर निकाल। He could have said, now I'm 80 years old now. वो कह सकता था अब तो मेरी उम्र 80 साल हो गई It's है time to retire. और अब तो सेवा निवृत्त होने का समय मेरे जीवन में आ गया And I've है lost all the skill I had. और जो कुछ निपुणता मेरे अंदर थी, योग्यता थी, अब वो सब इस उम्र में खत्म हो गई है। That's what God wants, परमेश्वर यही तो चाहता है to depend on Him totally. तू अपनी निपुणता पे नहीं परमेश्वर पे भरोसा करे। Amen. आमेन। And now He's led Israel out of Egypt. और अब वो इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के ला रहा है। 40 years in the wilderness, एक और 40 साल जंगल में भटकते बीत गए, leading these people, इन लोगों की अगुवाई करते करते। rebellious people, बलवा करने वाले लोग again and again, बारंबार फिर से they were rebelling against Moses. वे मूसा के विरुद्ध बलवा करते थे। And still, तो भी in his meekness, अपनी विनम्रता में, in his obedience to God, अपनी आज्ञाकारिता में परमेश्वर के प्रति he held to the post which God had given him. उसने उस कार्य को थामे रहा जो काम परमेश्वर ने उसे दिया था। Now he's old. लेकिन अब आज मूसा काफी बूढ़ा हो गया। Don't think he was very weak. ये ना सोचे कि बहुत दुर्बल हो गया His eyes were as strong as he was when he was young. और उसकी आंखें अभी भी तेज थी जैसे वो जवानी के दिनों में था। But he's saying to Israel, परंतु वो इस्राएलियों से कह रहा है, God is telling me, परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझसे कहा you are not the one to lead them into Canaan. कि यरदन के पार कनान देश में इन लोगों को ले जाने वाला तू नहीं है, Joshua will lead him. यहोशू इन लोगों को ले जाएगा। He is handing the baton to Joshua. और मूसा अपने कार्यभार को यहोशू को सौंपने वाला है In the sight of whole Israel. पूरे इजरायली सभा जनता के सामने। You might say, आप कहेंगे where are the 70 people? कि वो 70 पुरनिये कहाँ गए? They were the ones who was chosen. They were the ones on whom the hand was placed and they were judging. वो 70 लोग थे जिनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की गई थी और वो इजरायलियों के बीच में न्याय का काम कर रहे थे। Never challenge God's selection. परमेश्वर के चुनाव पे कभी भी सवाल ना उठाएं। Amen.